नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ ISHM पॉडकास्ट। मैं अभिषेक दत्ता रॉय और मैं फिर आपके सामने आया हूँ विद अनदर गेस्ट फैकल्टी जो शेफ कुंतल सरकार हु इज़ a production faculty of International School of Hospitality Management, and he takes care of the bakery division of our college. Chef, welcome to our show. नमस्कार। Chef, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, can you give a brief introduction to our viewers? Okay, so my name is Kuntal Sarkar, and basically I am from the Kolkata only. Kolkata means I am from the Behala. Okay, and I did my HM, means hotel management, in the year of 2008. Okay, and after that I did my training from the resort Mumbai. After that I got placed in Zuri. It's in Kerala as a management trainee. After that I joined one individual property when it was a pre-opening property. So I joined over there to get the knowledge that how to set up a kitchens and all, and how to planning the new menus. Okay, so that one is a very big opportunity for me. After that I moved to US in Carnival Cruise Line. I work over there almost 7 years, and even not only the US as well as the Australia, in Sydney and Melbourne also I working. And after that after 3-4 means after a few months, when I came back from the ship, I joined one reputed South Indian restaurant in US. It's in California. So suddenly, because of the pandemic came, so I joined means I moved to 7-Eleven Corporation as a store manager. Then suddenly I got offered, means I give interview and all, and I selected for the Ramsay Kitchen. I work over there almost 16 months. Then for the family reasons or something like that, I came back to India. Then I start to work with another college. I taught the students almost 14 to 15 months. Then I joined here in ISHM college. Here almost I finished 1.5 years. Really, that's great. And first of all, we are really proud that we are having you as in our faculty team, and I'm sure the students will also feel proud. And he is one of our most favorite professors by almost all of our students. Chef, another, you can take it as a personal question, but I would like to ask you, why did you choose bakery? Not only bakery, I choose the bakery and pastry sections also, because from the childhood I try to create something. I try to innovate something. So when I joined HM, before my trade was Indian. Okay, so Indian section, I am interested in Indian sections. Even my faculties also, they knows that okay, this guy from the Indian sections, he knows Indian sections, he can play anything from the Indian sections. But suddenly when I came back from the training, industrial training, in hotel, that time maybe I work 1 month or 2 months in bakery section, and suddenly I feel that okay, whatever my dream was, maybe I can do something with the bakery and pastry. So after training period, I spoke with my chefs, means my faculties, that chef, I like to join bakery and pastries. So they says that okay, no problem, you try, means you go with the bakery and pastries, as well as they
told me that bakery and pastry section is not a easy job. It's a very difficult jobs because in our home what we did, if we are making any curry or something like that, if something is missing we can adjust. But in bakery and pastry section, when you going to make something, when you going to innovate something, no, that every quantity of food or every item whatever you are using, you need to measure that one. Okay, so that's mean you need to perfection, you need to get the perfection on that. मैंने आप कहना चाहते हो कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है? मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है. सो लाइक तभी मैंने देखा कि और बेकरी पेस्ट्री आज के दिन में ऐसा जगह में चला गया है जहाँ पे एक बच्चा हो या बड़ा हो, किसी का भी अगर थोड़ा मीठा खाने का मन करता है, स्पेशली फॉर द किड्स, दे सेज I am not looking for the sweets, I need the cakes or I need the pastries and all. And जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि हाँ, केक के साथ भी हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारा नया नया थॉट्स हम लोग ला सकते हैं. जो तुम्हारा इनोवेशन है, जो तुमने किसी ने तुमको सिखाया नहीं, दैट थिंग ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर स्किल. स्लोली वो स्किल तुम्हारा खुद को डेवलप करना है. तभी धीरे धीरे मेरा कॉन्सेंट्रेट पूरा वो बेकरी और पेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही गया. और मेरा जो ड्रीम था कि मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ नया बनाऊं, तो मैं धीरे धीरे वो फोकस उसमें डालना स्टार्ट किया. कुछ नया इनोवेटिव पेस्ट्रीज बनाना स्टार्ट किया, कुछ नया गार्निश बनाना स्टार्ट किया. अभी वो काम करते करते भी ना, मैं एक टाइम आता है जब आप कोई एक स्पेशल जगह में जाना शुरू करते हो. जैसे आई एम व्हेन आई start in bakery, no, bakery or pastry. After that Ramsay Kitchens and all, slowly मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो शुगर गार्निश के और वेडिंग केक के ऊपर चला गया. सो आई एम स्पेशलाइज्ड इन वेडिंग केक एंड शुगर गार्निश ऑल्सो. और मैं आप लोग हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले विंटर्स में हम लोग का एक ड्राइव हुआ था जहाँ हर साल हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, वेयर वी रीच आउट टू वेरियस ऑर्फनेजेस. वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ISHM organized homemade donuts, right? Yes, homemade donuts, homemade muffins, homemade cookies, and maybe brownies also. Brownies. Yes. So these were made in a packet, and when we distributed, बच्चों लोगों को तो खुशी आया होगा ही, बहुत खुशी होगा. उससे ज़्यादा खुशी मेरे को है कि मैं भी साथ में गया था, तो शेफ़ से मुझे 1-2 ब्राउनी मांग के लेना पड़ा. अब किचन का शेफ़ है, डर लगता है, लेकिन दे दिए थे. हमारे शेफ़ बहुत अच्छे हैं. अच्छा शेफ़, मुझे और एक बात आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आप इंडियन में स्पेशलाइज किए थे, लेकिन आप बेकरी में ट्रांसफ़र किए. अब ऐसे different sections, how many sections are there in the kitchen? माने अगर हम प्रोडक्शन में अगर हम लोग प्रोडक्शन में देखें, प्रोडक्शन में जैसे आज, पहले हम लोगों के माइंड में इतना सेक्शंस आता नहीं था. दोज आर द स्टूडेंट्स, दोज आर द ओल्ड पीपल्स, उन लोगों के माइंड में ये सब आता नहीं थी. उन लोगों को पहले लगता था कि एक ही सेक्शन है, खाना मतलब है कि इंडियन खाना है, मुझे तंदूरी रोटी, राइस, पुलाव, चिकन करी, पनीर, यही खाना है. लेकिन आज के दिन में जब कोई हम लोगों का बुजुर्ग लोग या हम लोगों का दोस्त लोग या कोई भी रिलेटिव्स अगर जाता है, तो हम लोगों को बहुत सारा वैरायटीज़ देखते हैं. जैसे एक होटल में क्या क्या होता है, होटल में होता है इंडियन सेक्शंस के अंदर भी सेक्शंस होता है. जैसे हम लोगों का है तंदूर सेक्शंस होता है, देन साउथ इंडियन सेक्शंस, हलवाई सेक्शंस इज़ द very vital part of Indian kitchen. Then continental sections है, क्योंकि
आज के दिन और एक फैसिनेशन आ गया दैट वी आर लाइक द लेस ऑयली फूड्स, healthy foods. So in the continental sections people are making the salads and all, okay, and that rice, most of the times they are using the brown rices and all. Chicken breast is tossed with a little bit of butter and all. So, and lots of herbs, fresh vegetables, fresh herbs, okay. सो ये हुआ कॉन्टिनेंटल सेक्शन. देन चाइनीज है, थाई सेक्शंस है, पेस्ट्रीज, बेकरी. सो वी हैव सो मेनी सेक्शंस इनसाइड द होटल. सो वी एवर वांट टू जॉइन द होटल इंडस्ट्री, दे हैव सो मेनी scopes to go to the other departments, not only the bakery and pastry or not only the Indian sections. They have the so many options. जो आई थिंक ये एक ब्यूटी है इस प्रोफेशन का कि जैसे कि आपने किया है, आपने अपना पैशन फॉलो किया और आपने अपने पैशन को एक प्रोफेशन में ट्रांसफर कर दिया, जो मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई प्रोफेशन या दूसरा कोई ऐसा कोर्स है जो आपको पैशन फॉलो करने देता है. यस, जो आपका पैशन है. अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मेरा पैशन था बेवरेजेस, मेरा पैशन था अल्कोहल, मेरा पैशन था बारटेंडिंग, तो मैंने उसको फॉलो किया. तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट आई यूज माई प्रोफेशन जैसे कि आपने किया. आपने अपना प्रोफेशन को, आपने अपने पैशन को यूज़ किया, अपने प्रोफेशन में ट्रांसफ़र किया. तो अभी अगर देखा जाए कि जैसे मैं बेकरी बोले या आप बेकरी और पेस्ट्री, व्हाट आर दी you can say, agar when we are talking to all those new bakers or new students who are coming, what are the advantages and disadvantages? Advantages means जैसे आपने पहले बोला कि अपना पैशंस को तुम लोग वहाँ पे, जो पैशंस, जो ड्रीम तुमने किया वो तुम वहाँ पे जाके फुलफिल कर सकते हो. ठीक है. सो पहला थिंग वो है. दूसरा, आज के दिन क्या हो रहा है कि पहले जैसे अगर घर में एक बर्थडे पार्टी होता था या एनिवर्सरी पार्टी होता था या कुछ भी लाइक हैप्पी मोमेंट्स आता था, तो घर में मम्मी लोग क्या करती थी, वो थोड़ा सेवैया बना लिया, नहीं तो राइस का पायस बना लिया, थोड़ा पूरी सब्जी ये सब बना लिया. ठीक है. लेकिन आज के दिन क्या होता है, हैप्पी मोमेंट्स मींस इज सपोज टू बी ए केक, राइट. एक केक, या तो बच्चा लोग भी क्या करता है, कुछ भी हो कि अगर ऑफिस से मैं लौट रहा हूँ, मेरा जो बच्चा पापा फॉर द ब्रेकफास्ट और नाउ आई वांट टू टेक ए पेस्ट्री. सो ये क्या बच्चा लोगों के अंदर भी ये चीज़ आ गया है कि ओके आई नीड दैट one food and that one supposed to be pastry or a cake. ठीक है. तो दिस एडवांटेज है कि अगर आप लोग पेस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो नॉट ओनली इन इंडिया, outside of India also you have very good scopes for the bakery and pastry departments. Outside मीन्स नॉर्मली ये जो बेकरी एंड पेस्ट्री का ये है कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मली वो बाहर से आया. इंडिया में तो अभी अभी कुछ सालों से शुरू हुआ कि पेस्ट्री बेक और केक्स एंड ऑल, लेकिन ये जो केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, ये पहले से है. ठीक है. तो आप लोगों के पास बहुत सारा स्कोप रहेगा, जो दोज आर फ्रॉम द मीन्स दोज आर थिंकिंग दैट आई वांट टू जॉइन होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड especially those are want to become a safe means pastry और bakery shapes. उन लोगों के पास बहुत स्कोप है कि जो तुम जो सोच रहे हो उसको तुम अपने हिसाब से तुम बना सकते हो और बाहर में जाके वो चीज़
मीन्स इंडिया में तो स्कोप है ही, लेकिन बाहर में भी स्कोप्स है। बहुत सारा क्यूजिन्स है जो इंडिया के बाहर तुम लोग कर नहीं सकते हो, ठीक है, जो इंडिया के बाहर में तुम लोग उसको दे डोंट नो अबाउट दैट क्यूजिन्स। लेकिन बेकरी और पेस्ट्री में एक चीज़ है, इस यूनिवर्सल क्यूजिन जो तुम बाहर में भी कर सकते हो। और अगर कुछ इसके बारे में बोले कि हाँ इसमें खराबी क्या है, ठीक है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू कैन फेस। मेन थिंग दैट फर्स्ट थिंग यू नीड द बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज मिलेगा कहाँ से? देखो नॉर्मल बात, आज के दिन में नॉलेज मतलब सिर्फ किताब पढ़ के नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी आर द फैकल्टीज टू teach that students that what are the things is there, what are ingredients we are using, what is that ingredients, what is the proportion of that ingredients, and every single item have different their works, right? So ये चीज़ तुमको जानना है। then slowly you need the practical knowledge also। किचन ऐसा चीज़ है, तुम जब तक प्रैक्टिकल कोई नहीं करेगा, स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या होता है, कैसे बनना है, एग्जैक्ट कौन सा टाइम पे वो चीज़ ओवन के अंदर जाना चाहिए या कौन सा टाइम पे बाहर निकलना चाहिए, और कितना क्वांटिटी यूज़ करना है, एग्जैक्ट उसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये सब पता नहीं होगा। और मेरे हिसाब से आई थिंक पेशेंस भी एक वर्च्यू है, जो पेशेंस मेन थिंग दैट। सोचिए कि मैं एक केक बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक केक के लिए मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, ठीक है, और सिर्फ उसके बाद मुझे केक को लेयर्ड करना है, फुल क्रीम देना है। फिर जो पेशेंस आता है, वो पेशेंस का बात कब आता है? जब आप उसको गार्निश करोगे, क्योंकि आपको कोई देके चला गया ओके आई हैव दिस डिज़ाइन एंड ये डिज़ाइन से मुझे केक चाहिए, तो वो डिज़ाइन को आपको वो केक के अंदर डालना है, ठीक है। तो पेशेंस का बात वहाँ पे ही आता है। इसीलिए दोज आर द पेस्ट्री शेफ, वो लोग हमेशा, और जो नया चीज़ बनाना चाहते हैं ना, वो हमेशा अकेले में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट अगर ब्रेक हो जाएगा वो चीज़ आपके सामने आएगा ही नहीं। बात तो सही है, ठीक है। तो अभी आपने अभी जो बताया वहाँ से मैं आपको एक उसी से मेरे को एक सवाल मेरे मन में आया है, और वो ये है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये सवाल ये आया होगा कि मैंने जो देखा है कि आजकल बहुत सारे फैमिलीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो ये बेकरी का जो पैशन है, एक केक बनाना या पेस्ट्री बनाना या बेकिंग आइटम्स बनाना, उसको एक धीरे धीरे एक प्रोफेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे होम बेकरीज खुल जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये आपके हिसाब से क्या सही हो रहा है ये? देखिए मेरे हिसाब से सही भी हो रहा है और थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है। पहले मैं बोलूँ कि क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि एक पेस्ट्री और बेकरी के लिए या कुछ भी मैनेजमेंट कोर्स के लिए आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है। मैं अगर ईस्ट और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में अगर मैं बात बोलूँ, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है। बेकिंग पाउडर अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए एक उल्टा हो जाएगा, बेकिंग सोडा अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाएगा वो चीज़ भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे वो नॉलेज रहना ज़रूरी है कि मुझे कितना सामान डालना है और कैसे यूज़ करना है और वो सामान क्या है, ठीक है, किसके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर रहे। तो आज के दिन में क्या हो रहा है, दोज आर द सोचिए कि होम बेकर्स, दोज आर नया खुला है, दोज आर द होम बेकर्स। क्या होता है
कि शायद कुछ सोशल मीडिया साइट्स या कुछ भी किताब देख के आज के दिन में एक अगर रेसिपी आप सर्च करोगे तो 1000 रेसिपी मिलता है। लेकिन बात है कि वो रेसिपी सिर्फ जो है लिखा हुआ है उस हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। वही रेसिपी को आज आप बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सामान के लिए यूज़ करते हो, बहुत प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज़ कि अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप सिखा सकते हो, लेकिन उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज अगर कोई पूछ लिया आपको कि ये क्या है, ये क्यों यूज़ होता है और इसके बाद अगर मैं इसके साथ दूसरा कुछ डालूँ तो क्या होगा, तो तब वो नॉलेज वो लोग आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो सीख रहा है उसके पास आधा अधूरा नॉलेज आ रहा है, तो यहीं पर एक प्रोफेशनल कोर्स एक काम आता है। हाँ, एक जगह में एक प्रोफेशनल कोर्स काम आता है जहाँ पे आपको पूरा बेसिक से सिखाया जाता है कि वो चीज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या सामान रहता है और उसको कैसे यूज़ करना है, उसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, कम यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सोचता है कि सोचिए कि एक ब्रेड हम लोग खा रहे, तो ब्रेड में हम लोगों को थोड़ा बहुत स्वीटनेस मिलता है, ठीक है। अभी मैं सोचा कि ये ब्रेड में थोड़ा सा स्वीटनेस रहता है, मैं अगर ब्रेड को और थोड़ा स्वीट चाहिए तो ये लोग तो और थोड़ा स्वीट डाल ही सकता है, तो ब्रेड और थोड़ा खाने में मज़ा आएगा, थोड़ा स्वीटनेस लगेगा। लेकिन हर जगह में हर एक कंपनी का ब्रेड ऑलमोस्ट एक ही जैसा फ्लेवर देता है, थोड़ा लेस स्वीट फ्लेवर देता है। क्यों शुगर नहीं डाल सकता है? क्योंकि अगर मैं शुगर थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ ब्रेड में, ईस्ट और शुगर ये दोनों मिला के क्या करता है, ईस्ट को फर्मेंटेड करता है, शुगर काम करता है ईस्ट के साथ मिलके फर्मेंटेशन का, ठीक है। अगर मैं शुगर वहाँ पे ज़्यादा डाल दूँ क्या होगा, ईस्ट मर जाएगा, ईस्ट अपना काम कर नहीं पाएगा, तो वो ब्रेड आपका कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द नॉलेजेस वट एवर यू कैन गेट फ्रॉम द a reputed college or from the institute or from the hotel management faculty। ये नॉलेज आपको एक वीडियो देख के या एक नहीं मिलेगा, देख के नहीं मिलेगा। और ऊपर से आप सोचो कि एक ब्रेड रोल बना दिया, एक ब्रेड रोल का नोट बना दिया या स्टाइलिश कुछ ब्रेड बना दिया, ठीक है, तो आप वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग प्रोसीड्योर्स होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होता है। मैंने एक ब्रेड रोल बना दिया, सोचिए कि हो सकता है कि उसमें मैंने शायद ईस्ट का क्वांटिटी क्या है वो मैंने देखा नहीं। अभी शॉप में सोचिए कि ईस्ट मिलता है ना, तो हम लोगों को पता नहीं है कि वो ईस्ट ठीक है या ख़राब है, पता नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स इन द पैकेज ओनली, राइट, इट्स इन द पैकेज, ठीक है। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ईस्ट अच्छा है या खराब है? सोचिए कि मैं ब्रेड बना रहा हूँ, ब्रेड का सब कुछ सामान दिया मैंने, ईस्ट दिया, शुगर दिया, सॉल्ट दिया, फैट्स दिया, एग दिया, फ्लावर दिया, वार्म वाटर दिया, मैं डो बनाया, प्रूव करने के लिए छोड़ा, मैं देखा कि ब्रेड प्रूव ही नहीं हो रहा, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा प्रूव नहीं हो रहा। सो दैट्स मीन व्हाट गोइंग टू हैपन, या तो मेरा रेसिपी में कुछ गड़बड़ है, मैं कुछ सामान इधर उधर डाला, नहीं तो ईस्ट काम नहीं कर रहा है, ईस्ट खराब है। So that's mean what going to happen, that whatever quantity that ingredients you used is directly goes to the dustbin, means a big money goes inside the dustbin, right? So उसमें क्या, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक स्टार्टर डो बनाओगे। पहले स्टार्टर डो में क्या, वो जो चीज़ आप ब्रेड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो वही उसका थोड़ा थोड़ा करके आप एक जगह में करके एक वार्म वाटर के साथ मिक्स करके पहले रखोगे, आधा घंटा रख दिया या 15 मिनट रख दिया, देखोगे कि वो अगर प्रूव हो रहा है, स्लोली प्रूव हो रहा है, दैट्स मीन दैट ईस्ट इज गुड और योर रेसिपी इज गुड। सो ये नॉलेज आपको सोशल मीडिया से, ये सब चीज़ से नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये होम मेकर्स जो है तो ये नहीं। और
अगर मैं उसका सही जगह बोलूँ कि मैं अगर बोलूँ कि हाँ क्यों ये अच्छा है, क्योंकि इवन बहुत सारा हम लोगों का बहुत सारा स्टूडेंट्स है या बहुत सारे रिलेटिव्स है कि जिसको फैमिली कुछ रीज़न के लिए या कुछ हेल्थ इशू के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम के लिए वो लोग होटल इंडस्ट्री कंटिन्यू नहीं कर पाता। सो सोचिए कि एक स्टूडेंट्स जब होटल मैनेजमेंट किया, दैट टाइम दे आर इन्वेस्टिंग ए मनी, राइट, ठीक है। अब होटल इंडस्ट्री छोड़ देगा तो क्या होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? दैट मनी इज गॉन, राइट। So in that place they have a option, that one is the home bakery। तो होम बेकरी करके आज के दिन में वो तब वो क्या, उसके पास बेसिक नॉलेज भी है, ठीक है, दे कैन टाई अप विद द सम कंपनीज ऑल्सो, और या तो खुद अपना कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करके वो दूसरा स्टूडेंट्स जो है, जो इवन इन आवर फैमिलीज, आवर वाइफ्स और समथिंग सिस्टर्स और somebody they want to learn that kinds of things, maybe for the family purpose, maybe for the kids, because nowadays kids are like the muffins, pastries and all, okay। so बाहर से खरीदने से अच्छा कि घर में बना के दो, क्योंकि घर वाला खाना सबको लगता है कि हाँ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बाहर में क्या यूज़ हो रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन घर में चीज़ जब हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग अच्छी तरह से यूज़ करेंगे ना, अच्छा चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ क्या है कि एक तो वो अपना जो पैशंस था वो वहाँ पे वो दिखा रहा है, वही चीज़ को वो कंटिन्यू कर पा रहा है, साथ साथ एक जो पैसा उसने खर्चा किया था वो पैसा भी धीरे धीरे वो उसके पास आ रहा है ना, रिकवर आ रहा है। सो मैं बोलूँगा इस साइड से ये चीज़ अच्छा है। बस तो शेफ, अभी मेरा परहैप्स आखिरी सवाल होगा आपसे, ये सवाल नहीं है, जैसे कि आप जानते हो कि हर साल ISHM से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे ये पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज बोलो, दोज आर आवर स्टूडेंट्स, दे नो वेरी वेल व्हाट is going to be my message, okay, because they spend means a long time with me inside the kitchen also, even in the classroom also. Whenever I try to teach them, whenever I try to say something, that always I am saying that theoretical knowledge is for your theoretical purpose, means from your knowledge, but main thing you need the practical knowledge. Without the practical knowledge you cannot do anything, क्योंकि किचन में जब काम करोगे थियोरेटिकल नॉलेज तो आएगा ही, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज में कभी लिखा नहीं होगा कि तुम पैन को ऐसे हिलाओ या कुछ भी चीज़ को तुम कैसे यूज़ कर सको। फॉर दैट थिंग यू नीड द प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड मेन एंड वाइटल थिंग इज दैट यू नीड टू नो द बेसिक थिंग्स। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। आज के दिन में हम लोग बाइक चला रहे हैं तो उससे पहले हम लोगों को क्या सीखना ज़रूरी है? साइकिल सीखेंगे तभी आएगा कि कैसे बैलेंसिंग करना है। ऐसा कोई नहीं है जो पहले ही साइकिल ना सीख के डायरेक्टली एक बार में बाइक में चला गया कि हाँ मैं बाइक को कंट्रोल कर लूँगा। सो पहले आप लोग बेसिक नॉलेज को बढ़ाओ। जितना बेसिक नॉलेज अच्छा होगा, अगर बेसिक नॉलेज क्लियर होगा तो वो बेसिक नॉलेज के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आज के दिन में मेरा जो स्किल्स मैंने डेवलप किया वो स्किल्स आया कहाँ से? क्योंकि मेरा बेसिक नॉलेज क्लियर था। वो बेसिक नॉलेज से आप कुछ भी करोगे। अगर एक कुकीज़ का डो मैं बोलूँ, अगर कुकीज़ का डो का मुझे बेसिक नहीं पता चलेगा तो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़ नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा बेसिक पता है तो उसके साथ मैं दुनिया का जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल के उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकीज़ बना सकता हूँ।
So this is the thing, that first you need to clear your basics, and those are thinking that want to join the hotel industry. It's a very good industry for the young generations. हाँ, वर्क प्रेशर है, लेकिन अगर तुम वर्क प्रेशर नहीं लोगे, अगर आप लोग वर्क प्रेशर नहीं ले पाओगे तो लाइफ में कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक काम में वर्क प्रेशर है ही। जैसे घर में मम्मी सुबह से उठ के खाना पकाती है, उसके ऊपर भी वर्क प्रेशर है कि तुम स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, उससे पहले उनको खाना बना के सब कुछ रेडी रखना है कि ओके तुम जब घर से निकलोगे तुम खाना खा के जाओ। सो दैट्स मीन दैट वन ऑल्सो ए वर्क प्रेशर। ठीक है, तो अगर वर्क प्रेशर नहीं ले पाओगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो पहले वर्क प्रेशर लेना होगा। और वर्क प्रेशर तुम जब कॉलेज ज्वाइन कर पाओगे तभी तुमको धीरे धीरे हम लोग खुद तुम लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जाके तुमको वो सीखना है। और वर्क प्रेशर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मजदूरों वाला काम है। वर्क प्रेशर मतलब सोचो कि जो काम एक बंदा मीन्स दो बंदा मिलके कर सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं वो बंदा मीन्स वो काम एक ही बंदा करे। वाई? बिकॉज तब तुमको वो वर्क प्रेशर आएगा, और जितना वो वर्क प्रेशर को तुम मीन्स वो काम को तुम कंप्लीट कर पाओगे, दैट्स मीन यू आर गेटिंग द मोर नॉलेज फ्रॉम दैट। क्योंकि वो जब दो नॉलेज दोनों में डिवाइडेड हो रहा था, वो क्या होगा, दोनों नॉलेज ही तुम्हारे पास आएगा, वो डिवाइडेड नहीं हो रहा है। सो दिस इज द वर्क प्रेशर। Okay, thank you chef for your detailed insight, और I'm sure हमारे जो viewers हैं उन लोगों के पास बहुत सारे आज की डेट में they have a lot of material with them कि जैसे वो आगे बढ़ पाए। अगेन हमारे व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी इश्यूज़ है which you want to raise, please feel free to do so in our comment section below. Thank you for watching our views. Please follow us on our social media handles and get in touch with us. Our address and our contact numbers are given at the end of the video. Again, thank you chef. Thank you for coming to our show. Thank you for giving time, taking time off from your valuable schedule, and I know you are a very busy man. अब शेफ़ को बहुत देर से मैं पकड़ के रखा हूँ, क्योंकि अभी जाएंगे वो प्रैक्टिकल लैब में। तो थैंक यू शेफ़, थैंक यू once again, and thank you all for watching.